اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے عام اور خاص کے لحاظ سے اسم کی تقسیم۔ یہ ایک اور اسم کی تقسیم ہے۔ اسم مختلف اعتبارات سے مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اب تک ہم اس کی کافی قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ اب ایک اور قسم پڑھنے جا رہے ہیں جو بھی تقریباً ہر زبان میں پائی جاتی ہے۔ ہر زبان میں چیزوں کو خاص اور عام میں تقسیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خاص اور عام کا کنسیپٹ تقریباً چیزوں میں پایا جاتا ہے، زبانوں میں پایا جاتا ہے۔ عربی زبان میں عام اور خاص کے لیے دو الفاظ ہیں، عام کے لیے نکرہ اور خاص کے لیے معرفہ۔ تو تلفظ ان کا غور سے سنیں، نکرہ معرفہ، ٹھیک ہے۔ نکرہ کو عام طور پر آپ انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں اور معرفہ کو آپ بولتے ہیں پراپر ناؤن۔ تو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کا جو کنسپٹ آپ کو انگریزی میں ہے وہی یہاں پہ آپ استعمال کریں تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن کس کو کہتے ہیں، اس کا کنسپٹ آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا، لیکن اب نفی کے لیے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہے جو ایک ہی قسم کی، یعنی ان چیزوں کی قسم ایک ہو، ایک ہی قسم کی بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہو ایک ہی وقت میں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص آدمی کا نام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال سے یہ چیز واضح ہو جائے گی، کتاب، یہ لکھا تو جائے گا کتابن، لیکن پڑھنے میں کتاب، کوئی بھی کتاب، یہ اپنی قسم میں اس میں جتنی بھی کتابیں آ جاتی ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں گی، کوئی خاص کتاب مراد نہیں ہے، عام کتاب، چاہے مذہبی کتاب ہو، چاہے سائنسی کتاب ہو، چاہے اکنامکس کی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب اس سے مراد ہوگی۔ اسی طرح غرفہ، یہ جگہ ہے، غرفہ کوئی بھی کمرہ، کوئی خاص کمرہ مراد نہیں ہے، کمرے کی قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ رجل، آدمی، اب آدمی ظاہر ہے کہ زید بھی ہے، بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، علی بھی ہے، عثمان بھی ہے، مختار بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو رجل کوئی خاص آدمی مراد نہیں ہے، آدمی جو بھی ہے اس میں یہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسم نکرہ کا کنسیپٹ ہے عربی زبان میں۔ اسی طرح معرفہ اس کے پیر میں، اس کے ضد میں پراپر ناؤن خاص اسم، یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص آدمی کا نام ہو، اس کو ہم اسم معرفہ بولتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی خاص چیز، الکتاب، کتاب کا مطلب کیا ہوا، کوئی بھی کتاب، الکتاب کہیں گے جملے میں، دیکھیں گے کہ الکتاب جملے میں کس کا ذکر ہو رہا ہے، وہی کتاب مراد ہوگی اور عام کتاب مراد نہیں ہوگی۔ مکہ خاص جگہ کا نام ہے، ہر شہر کو مکہ نہیں بولیں گے، ایک خاص شہر کا نام ہے مکہ، یہ پراپر ناؤن ہے، اسم معرفہ ہے۔ اسی طرح خالد، یہ کسی عام آدمی کو خالد نہیں بولیں گے، خاص آدمی جس کا نام ہوگا خالد اسی کو بولیں گے، تو یہ اسم معرفہ ہے۔ تو اسم نکرہ اور معرفہ کا کنسپٹ آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ اسم نکرہ کی کوئی قسم عربی زبان میں نہیں ہے، البتہ معرفے کی کچھ اقسام ہیں۔ وہ شروع کرنے سے پہلے ایک نوٹ ہے، وہ ذرا دیکھ لیں۔ عربی زبان میں نکرہ سے معرفہ بنانے کا سمپل اصول یہ ہے کہ آپ نکرہ میں شروع میں الف لام لگا دیں، ال لگا دیں، تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے ہم نے اوپر کی مثال میں دیکھا، کتابن، الکتاب، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ال سے یہ کتاب خاص ہو گئی۔ انگریزی میں ہم عام طور پر دی لگاتے ہیں، دا لگاتے ہیں، ابک، دبک، ابک کا مطلب کوئی بھی کتاب، دبک کا مطلب خاص کتاب۔ معرفے کی 7 اقسام ہیں، ساتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ عربی زبان میں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہم نے پڑھی بھی ہے، ضمیر،
जितनी भी ज़मीर की किस्में हमने पढ़ी हैं ना, ये ज़मीर ख़ास इसम है, क्योंकि जब आप ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़ास आदमी बन जाता है जिसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे अंत, तू, तो ये तू हमने जब बोला तो इससे ख़ास आदमी मुराद है, वो मुराद नहीं है जो गायब है या कोई और। इसी तरह अंतुम, तुम सारे जो मौजूद हैं इनका जिक्र हो रहा है। हुआ, नहनु, तो इससे आम इंसान मुराद नहीं होता बल्कि ख़ास इंसान मुराद होता है जिसके लिए आप ये ज़मीर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दूसरी किस्म मारिफे की है इसम इशारा। कोई भी चीज़ आम हो, अगर आप उसको इशारा करेंगे उसकी तरफ, तो अब ज़ाहिर है आपकी मुराद ख़ास होती है, क्योंकि आपने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है वही मुराद होती है, दूसरी मुराद नहीं होती। जैसे ज़ालिका, तिलका, हाउलाई, उलाइका, वो, ये वो। अब ये वो कह के आप वही चीज़ मुराद ले रहे हैं जिसके लिए इशारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी चीज़ आप मुराद नहीं ले रहे। तो इसी तरह ये भी इसम इशारा मारिफा है। इससे मौसूल भी मारिफा होता है। अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ई, अल्लज़ीना, यानी वो जो, यानी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वही मुराद होगी, कोई और चीज़ मुराद नहीं होगी। इसमें अलम, इसमें अलम किसे कहते हैं? ये नई चीज़ है, पहले हमने नहीं पढ़ी। जैसे मौसूल, इशारा, ज़मीर तीनों पढ़े हैं हमने, ये नई चीज़ है, नोट कर लें। किसी भी ख़ास चीज़, ख़ास जगह, ख़ास आदमी का जो ज़ाती नाम होता है ना, उसको इसमें अलम बोलते हैं। ठीक है, ये वो अलम नहीं है जिसको हम उर्दू में परचम, झंडा बोलते हैं। जैसे हामिद, ये ख़ास आदमी का ज़ाती नाम है हामिद। करातशी, ये ख़ास जगह का, शहर का ज़ाती नाम है। तो ज़ाती नाम को इसमें अलम बोलते हैं। ये ज़ाती नाम जगह का हो सकता है, चीज़ का हो सकता है, या किसी आदमी का हो सकता है। और पांचवी किस्म है इसम मारिफे की, इसम मुअर्रफ बिल्लाम। क्या? मुअर्रफ बिल्लाम, यानी अलिफ लाम के जरिए से जो मारिफा बनाया गया हो वो इसम मुअर्रफ, मुअर्रफ बनाया गया, मारिफा बनाया गया बिल्लाम, लाम के जरिए से। यानी ये वो नकिरा है जिसको आपने अल लगा के मारिफा बना दिया है। जैसे रजुल, अर रजुल, खास आदमी। किताब, अल किताब, खास किताब। तो ये बात एक और नोट कर ले, नोट के तौर पर, इसम नकिरा के साथ जब अब अल लगाकर उसको इसम मारिफा बनाते हैं, तो अल लगाने से अब उसमें जो तनवीन होती है आखिर में, यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश, वो खत्म हो जाती है। तनवीन खत्म होके सिंगल पेश, सिंगल जबर, सिंगल आएगी, सिंगल जेर आएगी। जैसे किताबुन, तो अल किताबु, अल किताब, अल किताबी। अल किताबुन नहीं होगा, अल किताबन नहीं होगा, अल किताबिन नहीं होगा। तो अलिफ लाम के साथ सिंगल जो हरकत है वो इस्तेमाल होगी, डबल नहीं। डबल हरकत को हम तनवीन बोलते हैं। छठी किस्म में मुनादा, ये भी नया लफ्ज है, नई किस्म में। मुनादा किसे कहते हैं? ये निदा से निकला है, यानी वो इसम जिसको आप पुकार रहे हैं, पुकारने वाली चीज, पुकारने वाले जगह, पुकारने वाला शख्स, आदमी, उसको हम मुनादा बोलते हैं। जैसे या वलद, ए लड़के, या रजुल, ए आदमी, ए भाई। तो ये मुनादा कौन है? वलद और रजुल, ये मुनादा है। और या क्या है? हरफ निदा, यानी वो हरफ जिसके जरिए से हम पुकार रहे हैं किसी को, जिसको पुकार रहे हैं उसको हम बोलते हैं मुनादा। तो ये मुनादा पुकारने की वजह से खास हो जाता है। ये वलद और रजुल वैसे तो नकिरा है, आम है, लेकिन चूंकि आप जिसको बुला रहे हैं अब वही वलद, वही रजुल मुराद है, कोई और मुराद नहीं है। इसी तरह मारिफे की सातवीं किस्म है इसम मुजाफ इलल मारिफा, यानी वो इसम जो मुजाफ हो रहा है, मंसूब हो रहा है मारिफे की पांच किस्मों की तरफ, जो ऊपर हमने पढ़ी पांच किस्में, उनकी तरफ अगर मुजाफ होगा कोई भी इसम, तो वो भी मारिफा बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी मिसालें देखें, मिसालों से बात वाज़ेह हो जाएगी। सब की सब किस्मों की मिसालें दी हैं। जैसे जुमला है एक, कुरान की आयत है, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है मोहसिनों के या नेकोकारों के। रहमतल्लाहि, अल्लाह क्या है?
इसमें अलम है, अब उसकी तरफ मुजाफ हुआ क्या, रहमत, तो इसमें अलम की तरफ मुजाफ हो गया। तो ये कौन सा इसम है, यानी हमने कौन सी किस्म पढ़ी, इसम मुजाफ इलल मारिफा। तो अब ये मुजाफ हो रहा है मारिफे की तरफ, मारिफा क्या है, इसमें अलम, वो कौन है, अल्लाह। तो ये रहमत वैसे तो आम है, लेकिन अब मुजाफ होने की वजह से मारिफे की तरफ ये खास हो गया। अल्लाह की रहमत यानी किसी और की रहमत नहीं, अल्लाह की रहमत तो खास हो गई। इसी तरह एक और आयत है जिसमें ये किस्म आई, वाला सऊफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब देगा अता करेगा तुझे तेरा रब। तो जमीर की तरफ रब मुजाफ हुआ, रब्बुका तेरा रब, तो जमीर की तरफ इसम मुजाफ हुआ। तो अब ये रब क्या हो गया, मारिफा, वैसे तो ये नकिरा है कोई भी रब, लेकिन अब तेरा रब मुराद, तेरा रब खास रब। इसी तरह तीसरी मिसाल देखें, वला तहादून अला तआमिल मिस्कीन, और तुम नहीं उभारते, तरगीब देते मिस्कीन के खाने पर। तो आमिल मिस्कीन, अब अल मिस्कीन क्या है, मुअर्रफ बिल्लाम, उसकी तरफ मुजाफ हो रहा है क्या, ताम। तो वैसे ताम नकिरा है, लेकिन मिस्कीन की तरफ मारिफे की तरफ मुजाफ होने की वजह से अब ये ताम भी मारिफा हो गया। तो आमिल मिस्कीन यानी मिस्कीन का खाना, किसी और का खाना मुराद नहीं है, खास खाना बन गया। इसी तरह और मिसाल देखें, मसलुल्लज़ीना, मिसाल उन लोगों की जो, तो अब ये अल्लज़ीना इसम मौसूल है, अब ये मिसाल लफ्ज़ उसकी तरफ मुजाफ है, तो अब ये ख़ास हो गया मुजाफ होने की वजह से। तो ये मिसाल आम नहीं रही बल्कि ख़ास हो गई। किन लोगों की मिसाल, जिनकी ये दी जा रही है इस आयत में। इसी तरह एक और आखिरी मिसाल है, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस वो इबादत करें इस घर के रब की। रब्ब हादा, हाजा इसम इशारा है, इसम इशारा की तरफ मंसूब हो रहा है, मुजाफ हो रहा है रब। तो अब ये रब वैसे तो आम है नकिरा है, लेकिन खास हो गया, मारिफा हो गया, हाजा की तरफ मंसूब होने की वजह से। इस घर का रब यानी कोई आम रब मुराद नहीं है। तो ये कुल हमने पढ़ी 7 अकसाम, ये जरा नोट कर लें। कौन सी, ये 7 अकसाम, तो मारिफे की 7 अकसाम होती हैं, और ये सातों को आप नोट कर लें, ये मारिफा है, इसमें ख़ास है। ठीक है जी। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को समझ सकें, जुमलों को, इबारतों को, ज़ुबान को समझ सकें। अब ये इसमें मश्क है, ये एक तदरीब है, ये दूसरी तरतीब तदरीब है। तो दो तदरीबें हैं, मशकें हैं, ये कल करके आएंगे। पहले मैं ये मशकें आपसे पूछूंगा, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। तो यहाँ आज हमारी क्लास ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आपको अरबी ज़ुबान आसानी से समझने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।